So children, up to here we read about the factors of production. These four are the factor of production. First is land, second is labor, third is capital, and the fourth is the enterprise. So let us know about the farming in Palampur. As we read the factors of production, and we know the stories of up to here, the story of Palampur, that 75% or a lot of people are engaged in agriculture. So these were the factors of production. Those were the factor of production. Now let us know about the farming in Palampur. So the farming in Palampur is based on following factor. Not only Palampur children, it is about the story of villages, different type of villages across this India. These villages need these things for the production. So first is the land, which is fixed. Second is change in the method of cultivation. Third is the multiple cropping. Fourth is the modern farming. Then sustainability of land, distribution of land, labor, capital, and last is the selling of farm products. These are the factor on which the farming in Palampur is based. Let us know the first one. The land is fixed. So about 75% of population are depend on farming in Palampur. Land area under cultivation is fixed. There has been no expansion in land under cultivation. That means कि जो ज़मीन है, जो लैंड है पालनपुर में, वो क्या है, वो एक्सपेंड नहीं हो पा रही है. और फॉर द सिंस 1960 वो जो लैंड है कल्टीवेशन का वो फिक्स है. सेकेंड फैक्टर, चेंज इन द मेथड ऑफ कल्टीवेशन. मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग आर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज इन पालनपुर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड. जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि लैंड फिक्स है पर पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, तो उस हिसाब से कैसे प्रोडक्शन किया जाए ताकि लोगों की नीड जो है वो पूरी हो जाए. सो कल्टीवेशन के मेथड में थोड़ा सा चेंज किया गया. क्या किया गया? दो तरीका अपनाया गया. फर्स्ट इज द मल्टीपल क्रॉपिंग, सेकंड इज द मॉडर्न फार्मिंग. लेट अस नो अबाउट द मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग. Children, these questions may come in exam about describe multiple cropping or the modern farming, or it may ask the method of cultivation. So these two are the method of cultivation in the village Palampur. First the multiple cropping. नाम से ये क्लियर हो रहा है, मल्टीपल मतलब ढेर सारे क्रॉपिंग, मतलब एक ही जगह पर ढेर सारी क्रॉपिंग किए अगर एग्रीकल्चर किया जाए. सो क्या होगा? मल्टीपल क्रॉपिंग. जिससे क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और पॉपुलेशन जिस स्पीड से ग्रो हो रही है तो उसकी नीड को क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा. Method of cultivation. Cropping is used in Palampur. Cultivation of different types of crops in the same piece of land at same or different time is known as multiple cropping. For example, jowar and bajra grow during rainy season. Potato is produced between October and December. Wheat is produced during winter season. ये बात हो रही है सेम लैंड पर. देखिए क्रॉप्स डिफरेंट ग्रो हो रही हैं, विच इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग. सेकेंड इज मॉडर्न फार्मिंग. नाम से ही क्लियर है, मॉडर्न जो नया तरीका अपनाया जा रहा है फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज जिसे हम बोलते हैं HYV सीड्स आर यूज्ड. एज अ रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स. बहुत कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन, इसी को बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन. इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड. क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का कि कौन सा स्टेट है जिन्होंने पहले यूज़ किया था. सो दीज थ्री आर द स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. Introduction of the green revolution using HYV seeds producing wheat and rice on a large scale. So question may ask what is green revolution? So green revolution is what? The production of wheat and rice on a large scale is known as green revolution. नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड. देखिए जिस तरह से क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, जिस तरह से लैंड को यूज़ किया जा रहा है, उससे क्या लगता है कि लैंड सस्टेन कर पाएगी, रह पाएगी. क्योंकि अगर आप देखिए, अगर हम मेडिसिन खाते हैं, अगर मेडिसिन डॉक्टर ने हमारे लिए लिखा है तो एक पर्टिकुलर टाइम पर उसको खाना होता है. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम एक दिन में ही मेडिसिन पूरे हफ्ते की खा ले तो हम सही नहीं होंगे, बल्कि हम और तबीयत ख़राब हो जाएगी हमारी. सिमिलरली अगर हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए तो उसमें हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, लेकिन लिमिटेड होना चाहिए. अगर वो ज़्यादा हमने यूज़ कर लिया तो लैंड क्या हो जाएगी? बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी. तो वही क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, क्या लैंड बच पाएगी? सो अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक रिपोर्ट इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्स आर ओवर यूज्ड. देख लीजिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है जिससे लैंड पर असर पड़ेगा.
ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स आर पॉल्यूटेड बाय द वे ऑफ यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जितने भी फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होती है, ज़मीन जो है, अर्थ जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमारे जो प्रोडक्शन है, जिससे हमारे जो लैंड वो ख़राब हो जाएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। वो जैसे हमारे अगर आरओ लगा होता है, आरओ बहुत अच्छा नहीं है, कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो उसके अंदर बैक्टीरिया और जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं वो क्या कर देता है, वो ख़त्म कर देता है। सिमिलरली केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो चीज़ें सॉइल में ज़रूरी होती हैं कि जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो, वो चीज़ें ख़त्म कर देगा तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। फोर्थ इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। सो अब देखते हैं कि चूँकि हमने पढ़ा कि कितने परसेंट वहाँ पर दलित हैं, कितने परसेंट अपर क्लास फैमिलीज़ हैं, उनके पास लैंड कैसी है। About one third of 450 families are landless in Palanpur. 240 families cultivate a small plot of land less than 2 hectares of in size, and remaining 60 families cultivate more than 2 hectares of land. And the last is a few of larger farmer cultivate 10 hectares or more than 10 hectares of land. ये दिखा रहा है कि वहाँ पर ज़मीन कैसे बढ़ती है। जो बहुत अमीर फार्मर्स उनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, जो उनसे कम है उनके पास 2 हेक्टेयर्स है, कुछ 2 हेक्टेयर से बहुत कम है, कुछ 2 हेक्टेयर ज़्यादा। जो बहुत बड़े फार्मर्स हैं उनके पास 10 हेक्टेयर से उससे भी ज़्यादा ज़मीन है। सो इस तरह से लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है पालनपुर में। सो नेक्स्ट हम जो फैक्टर्स है वो अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। टिल देन मेक नोट ऑफ इट।